In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। My lovely students and worthy viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very thankful to you all that you keep watching my videos. My lovely students and worthy viewers, you know me very well that I often start my lecture with a beautiful poetry, and these days I have been reading out the poetry of great poet of Sin Chabdri Tibetai Rahmatullah Alayh, who says, सूफिय साफ़ कयो धोई वर्क वजूद जो, सूफिय साफ़ कयो धोई वर्क वजूद जो, तिहां पोए थियो जियरे पसण प्रिय जो, तिहां पोए थियो जियरे पसण प्रिय जो. So these were the marvelous lines said by great poet of Sin Chabdri Tibetai Rahmatullah Alayh, who is commonly called the poet of love, the poet of revolution, and the poet of struggle. After his poetry, I want to pray for you people that may you always remain happy and may Allah's special blessings be upon you all. My lovely students, you know that so far, by the grace of Allah the Almighty, we have covered 27 angles of verb to have, and today we are going to cover another angle of verb to have, that is angle number 28. And. In previous lectures related to verb to have, the verb to have had some meaning. I mean, sometimes it was having the meaning of undergoing, sometimes it was having the meaning of possessing something, sometimes it was having the meaning of acquiring something, sometimes it was having the meaning of receiving something, sometimes giving us the meaning of bearing something. But today the angle of verb to have is totally different. There is no meaning of verb to have today. It is only helping us. So it is being used as auxiliary verb, and the meaning of auxiliary verb is helping verb. Fine. So today, in today's lecture, the verb to have is not used as meaningful word. It is used as meaningless word, meaning we will not be having any meaning of verb to have, but it is going to play very important role. It is going to be used with infinitive, fine, where it will play its role to show obligation, compulsion or necessity. Fine. अब बेटा इनका मतलब ये होता है कि आज जो हम वर्ब टू हैव इस्तेमाल करेंगे ना, वो बगैर मायने के इस्तेमाल होगा, ठीक है, लेकिन वो हमें मदद करेगा किसी चीज की जरूरत को शो करने के लिए, किसी मजबूरी को शो करने के लिए, ठीक, किसी जरूरत, किसी नीड, किसी नेसेसिटी को, या किसी ऑब्लिगेशन को, या किसी कंपल्शन को शो करने के लिए, ठीक है. मीनिंग वी विल बी यूजिंग टू हैव एज हेल्पिंग वर्ब. फाइन. मीनिंग इट विल नॉट गिव अस एनी मीनिंग, बट इट विल प्ले इट्स वाइटल रोल टू शो ऑब्लिगेशन, टू शो नेसेसिटी, टू शो कंपल्शन. ठीक है, मतलब किसी इंसान को कोई काम जरूरी करना होगा, लाजमन करना होगा, मजबूरी के तहत करना होगा, ठीक है. So without wasting time, we come to our today's lecture. Fine. So let's start. In angle number 28, the verb to have is used as an auxiliary verb with infinitive to express compulsion, necessity, obligation. I repeat, in angle number 28, the verb to have is used as an auxiliary verb with infinitive to express compulsion, necessity or obligation. As I have already told you that the meaning of obligation, compulsion is majburi. Fine. Obligation की या compulsion की जो मायने है ना, वो है मजबूरी. And necessity, इसका मतलब होता है जरूरत. ठीक है ना, जरूरत, नीड. In other words, we may say need. ठीक है. आज के एंगल में जो वर्ब टू हैव होगा ना, वो बगैर मायने के इस्तेमाल होगा, और यहां पर ये सिर्फ हमारी कर रहा होगा मदद. ठीक है. दिस पर्टिकुलर वर्ड ऑक्सिलियरी, दैट मीन्स हेल्पिंग. ठीक है, हेल्पिंग, लेकिन किसके साथ मिलकर? इन्फिनेटिव वर्ब के साथ मिलकर. ठीक है ना.
ऑक्सिलियरी वर्ब होकर ये मिलेगा इन्फिनेटिव वर्ब से टू एक्सप्रेस व्हाट, कंपल्शन मजबूरी, ऑब्लिगेशन मजबूरी, नेसेसिटी जरूरत। ठीक है, सो दैट वाज द स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंगल नंबर 28। नाउ फॉर understanding it in good way we'll have to go to its examples. So come to its examples. Example number 1, he has to complete company target in 5 months. I repeat, he has to complete company target in 5 months. बेटा इसका मतलब ये होगा कि उसे कंपनी का टारगेट 5 महीनों में मुकम्मल करना है। उसे कंपनी का टारगेट 5 महीनों में मुकम्मल करना है। नाउ लुक, आई हैव रिटन ओवर हियर ऑब्लिगेशन, और यहां पर भी देख लें मैंने कंपल्शन को इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया कि कंपल्शन और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, मतलब कोई भी हमें काम जो है ना वो मजबूरन या लाजमन करना होगा, हर हाल में करना होगा। इट इज आ कंपल्शन, इट्स आ ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब किसी भी सूरत हाल में, किसी भी हालत में हमें वो काम करना होगा। फाइन, आई रिपीट, ही हैज टू कंप्लीट कंपनी टारगेट इन 5 मंथ्स। उसे कंपनी का टारगेट 5 महीनों में मुकम्मल करना है। अब देख ले, मतलब इट इज हिज कंपल्शन, आई मीन द कंपनी हैज इम्पोज्ड a target on him that you have to do, I mean the person has to complete their target just in 5 months. उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया है, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉय को कि भाई आपको जो हमारी कंपनी का टारगेट है ना, ठीक है, वो आपको 5 महीनों में मुकम्मल करना है, मुकम्मल करना है, मुकम्मल करना है। नाउ द एम्प्लॉय इज कंपेल्ड, नाउ द एम्प्लॉय इज obliged। ठीक है, मतलब अब वो कंपेल्ड है, obliged है, उससे वो 5 महीनों में जरूर 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 मुकम्मल करना है। क्या? कंपनी टारगेट। कितने अरसे में? 5 महीनों में, 5 महीनों में, 5 महीनों में। फाइन बेटा, ओके फाइन। So that was example number 1 related to today's angle, and today's angle is 28. Fine. After example number 1, we move towards another example, that is example number 2. She will have to arrange lots of things for her family. I repeat, she will have to arrange lots of things for her family. उसे अपने खानदान के लिए बहुत सी चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसे अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत सी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। फाइन, ओके। अब ये करना पड़ेगा मैंने इसीलिए कहा है, देख लें यहां पर बेटा, यहां पर मैंने फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल किया हुआ। फाइन, ठीक है, फ्यूचर टेंस को। फाइन, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू यूज, ठीक है, टू हैव वर्ब। सो टू हैव वर्ब इज यूज्ड, ठीक है, एंड यहां पे देखेंगे उसके फौरन बाद हमने इस्तेमाल किया है इन्फिनेटिव, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल हैज टू कंप्लीट, सेकंड में भी देख लें शी विल हैव टू अरेंज। हैव के फौरन बाद हमने इस्तेमाल किया है इन्फिनेटिव वर्ब को। इन्फिनेटिव वर्ब किस तरह है कि एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, टू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन्फिनेटिव का बेटा जो ना हमारी उर्दू में इसकी पहचान है ना, पहचान वो मतलब बहुत आसान ये होती है कि मतलब इन्फिनेटिव का अगर हमें पहचानना होता है ना तो वो उसकी एंड, उर्दू की जो एंड बनती है ना वो बनती है नून अलिफ ना। देखें, टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, टू ईट खाना, टू ड्रिंक पीना, टू गो जाना, टू स्लीप सोना, टू गेट अप उठना, टू टॉक बोलना, टू वेट इंतजार करना। फाइन, तो मतलब नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना। अच्छा, प्लीज 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 अब ये मत समझना कि मतलब जिस भी किसी उर्दू वर्ड के एंड में नून अलिफ ना आ जाए तो वो हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब ही होगा। नो, ऐसा नहीं होगा। अब मैं मतलब आपको थोड़ा मजाकन बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमसे कोई कहे कि नाना, अब नाना के भी एंड में जो ना अब नून अलिफ ना है तो अब नाना थोड़ी वो वर्ब हुआ भाई, नाना जो है वो नाउन है, मतलब ग्रैंड फादर जिसको हम कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है।
तो इस तरह के मतलब और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। तो मैं मोस्टली ये अपना जो ना परसेंटेज के हिसाब से कहता हूँ कि 99.9% हमारी जो उर्दू बनती है ना इन्फिनिटी की, वो बनती है नून अलिफ ना। ठीक है, फाइन। आई गेव यू सम एग्जांपल्स एज वेल, फाइन। सो आई रिपीट, शी विल हैव टू अरेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर हर फैमिली। उससे अपने खानदान के लिए बहुत सी चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। फाइन। सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 2। फाइन, नाउ वी मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। I have had to sacrifice my health for you. I repeat, I have had to sacrifice my health for you. मुझे आपके लिए अपनी सेहत की कुर्बानी देनी पड़ी है। मुझे आपके लिए अपनी सेहत की कुर्बानी देनी पड़ी है। फाइन बेटा, ओके। अब यहां पे थोड़ा सा देख लें, यहां पर है भी इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद हेड भी इस्तेमाल हुआ है। फाइन। बेसिकली हम जो सीख रहे हैं ना बेटा, हम जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये हेड कैसे आ गया। बेटा ये देख लें, यहाँ पर मैंने जो हैव इस्तेमाल किया ना, ये वाला है, ये बेसिकली मैंने परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज जो हम सीख रहे हैं ना टू हैव वर्ब, फिर उसको मुझे लाना पड़ रहा है थर्ड फॉर्म की शक्ल में। फाइन बेटा। सो आई हैव हैड टू सेक्रीफाइस माई हेल्थ फॉर यू। मुझे आपके लिए अपनी सेहत की कुर्बानी देनी पड़ी है। फाइन, मुझे आपके लिए अपनी सेहत की कुर्बानी देनी पड़ी है। फाइन बेटा, ओके। सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 3। नाउ वी मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। पेरेंट्स आर हैविंग टू फेस मेनी डिफिकल्टीज। आई रिपीट, पेरेंट्स आर हैविंग टू फेस मेनी डिफिकल्टीज। आई रिपीट, पेरेंट्स आर हैविंग टू फेस मेनी डिफिकल्टीज। वालिदैन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फाइन, वालिदैन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब देख ले बेटा, ये थोड़ा सा देख लें, यहां पर भी इसकी मीनिंग, ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड था, यहां पर ये फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, एंड ओवर हियर यहां पर देख लें, यहां पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में मैंने इसका इस्तेमाल किया। सो आई रिपीट, पेरेंट्स आर हैविंग टू फेस मेनी डिफिकल्टीज। वालिदैन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सही है, इट मीन्स दे आर इन प्रोसेस, ठीक, इन फेसिंग सच डिफिकल्टीज। ठीक है, दे आर अंडर गोइंग टू फेस सम डिफिकल्टीज। ठीक है बेटा, फाइन। After example number 4, we move towards another example, that is example number 5. They did not have to wait more for us. I repeat, they did not have to wait more for us. उन्हें मजीद हमारा इंतजार नहीं करना पड़ा। उन्हें मजीद हमारा इंतजार नहीं करना पड़ा। अब देख लें यहां पर बेटा, यहां पर मैंने इस्तेमाल किया हुआ डिड। ठीक है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो मतलब इसलिए मैंने उर्दू क्या कही है कि उन्हें मजीद हमारा इंतजार नहीं करना पड़ा। फाइन, इट मीन्स दैट इज पास्ट। ठीक है बेटा, ओके। आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 5, नाउ वी मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। डज आलिया हैव टू लीव हर मदर अलोन एट होम? आई रिपीट, डज आलिया हैव टू लीव हर मदर अलोन एट होम? क्या आलिया को अपनी माँ को अकेला घर पर छोड़ना पड़ता है? क्या आलिया को अपनी माँ को घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है? इट मीन्स नाउ शी इज कंपेल्ड टू लीव हर मदर अलोन एट होम। शी इज obliged टू लीव हर मदर अलोन एट होम। देख लें क्या लिखा हुआ है यहां पर, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन। आलिया इज कंपेल्ड। आई रिपीट, डज आलिया हैव टू लीव हर मदर अलोन एट होम? क्या आलिया को अपनी माँ को घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है? क्या आलिया को अपनी माँ को अकेला घर पर छोड़ना पड़ता है? फाइन, फाइन बेटा। So that was example number 6. Now we move towards another example, that is example number 7. He and I had to borrow some amount from friends. I repeat, he and I had to borrow some amount from friends. उसे और मुझे अपने दोस्तों से
कुछ रकम उधार लेनी पड़ी। उसे और मुझे अपने दोस्तों से कुछ रकम उधार लेनी पड़ी। उधार लेनी पड़ी। फाइन। इट मीन्स he and I were compelled to borrow some amount from friends. He and I were compelled, were obliged to borrow some amount from friends. वो और मैं मजबूर थे दोस्तों से पैसे लेने पर। फाइन बेटा। सो ही एंड आई हैड टू बोरो सम अमाउंट फ्रॉम फ्रेंड्स। उसे और मुझे दोस्तों से कुछ उधार लेनी पड़ी। उसे और मुझे दोस्तों से कुछ रकम उधार लेनी पड़ी। फाइन बेटा। ओके फाइन। So that was example number 7. Now we move towards the last example related to angle number 28, where to have is used as meaningless word, but though it is meaningless, but it is playing a vital role. अगरचे टू हैव यहाँ पर आज वाले लेक्चर में मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, मतलब इसकी कोई मायने नहीं है, लेकिन देख लें कि वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, बहुत ज़रूरी किरदार अदा कर रहा है. इट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन टुडेज लेक्चर. फाइन बेटा. So example number 8. Haris will have to secure position in the next test. I repeat, Haris will have to secure position in the next test. हारिस को अगली टेस्ट में पोजीशन लेनी पड़ेगी, पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी, पोजीशन उठानी पड़ेगी. हारिस को अगले टेस्ट में पोजीशन लेनी पड़ेगी, पोजीशन उठानी पड़ेगी. फाइन बेटा. लेनी पड़ेगी या उठानी पड़ेगी. बेटा यहां पर देखना ये ना ये वाला वर्ड सिक्योर, ठीक है ना. दैट मीन्स टू ऑब्टेन, टू गेट, व्हाट, टू अचीव, टू ऑब्टेन, टू गेट. सिक्योर, ठीक है ना. सिक्योर इसका मतलब ये होगा. ठीक है. सो आई रिपीट, हारिस विल हैव टू सिक्योर पोजीशन इन द नेक्स्ट टेस्ट. हारिस को अगले टेस्ट में पोजीशन उठानी पड़ेगी, पोजीशन लेनी पड़ेगी या पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी. फाइन बेटा. So this was our today's lecture, wherein I tried my level best to clarify today's angle, but you know that in today's angle the verb to have was meaningless. It did not have any meaning. Fine बेटा. आज के लेक्चर में verb to have की कोई मायने नहीं थी, लेकिन it played a vital role to express its meaning. ठीक है. With the help of infinitive verb. ठीक है ना. infinitive verb है, किस चीज के लिए हमने इस्तेमाल किया उसको? To show compulsion, to show necessity, to show obligation. ठीक है बेटा. So by the grace of Allah Almighty, we have covered 28 angles so far. So that was our today's lecture, wherein you learnt verb to have, and that was helping us to express compulsion, necessity or obligation. And I am also very thankful to my worthy viewers that they are having deep interest in my videos. And some of my viewers posed me a question related to angle number 27, wherein the meaning of verb to have was acquiring, obtaining, purchasing or adopting. Acquiring, obtaining, purchasing or adopting. I am very thankful to such viewers that they are posing, and Sir Shaukat is with you people. And whatever Sir Shaukat knows, inshallah, he will be there to help you. Fine, beta. And once again, thank you very much for your nice questions. Now, as you know that I often end my lecture with a beautiful dua which used to be said by Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He would say, Rabbi zidni ilma, O my Lord, increase my knowledge. O mere Allah, mere ilm mein izafa kar. O mujhe Rabb, mujhe ilm mein izafa kar. And my lovely students and worthy viewers, keep praying for me, and I also keep praying for you as well, because now we have become a family. It's necessary. Now it's our duty to exchange prayers. Fine. Inshallah, meeting you soon in next video. Until next video, assalamu alaikum and bye bye.